السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کی خدمت میں شیئر کرنے جا رہا ہوں سندھ پبلک سروس کمیشن کی SST ٹیسٹ کا ایک اوریجنل پیپر۔ ہمارے پاس ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پیپر ٹائپ سی ہے، یہ سی پیپر ہے۔ اس کے علاوہ ٹائپ بی میں آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں، اس کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیسٹ 18 فروری 2024 کو لیا گیا ہے۔ پیپر بی میں دوستو ہمارے پاس انگریزی والا پورشن موجود نہیں تھا، اس کی صرف 2 MCQs موجود تھی۔ ہمارے پاس سوال نمبر 1 ہے، سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی واز اسٹیبلشڈ آن ڈیش بائی آغا حسن علی افندی۔ یہاں پر آپشن ڈی ٹھیک ہے، آغا حسن علی افندی نے سندھ مدرسۃ الاسلام کی بنیاد 1 ستمبر 1885 کو رکھی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے، سر سید احمد خان لیڈ دا فاؤنڈیشن آف پرشین اسکول ایٹ۔ سر سید احمد خان نے پرشین اسکول کی بنیاد مراد آباد میں رکھی تھی۔ کریکٹ آپشن نمبر سی ہے۔ کویسچن نمبر 3 ہے، وچ آف دا فالوئنگ از دا نیئرسٹ ٹو دا گوادر فورٹ۔ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے یہ گوادر فورٹ کے نزدیک ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، ٹیلی ویژن سینٹر آف PTV ور اسٹیبلش ان کراچی اینڈ راولپنڈی اسلام آباد ان۔ PTV سینٹر اسٹیبلش کیا تھا کراچی اور راولپنڈی اسلام آباد میں 1967 کو۔ سوال نمبر 5 ہے، آبجیکٹیو ریزولوشن واز پاسڈ۔ آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کی گئی تھی 12 مارچ 1949 کو۔ آپشن سی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، دا فرسٹ نیوکلیئر پاور پلانٹ واز سیٹ اپ ایٹ کراچی ان 1972۔ آپشن بی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، وہ گیو دا ٹائٹل آف قائد اعظم ٹو محمد علی جناح۔ محمد علی جناح کو قائد اعظم لقب مولانا مظہر الدین شہید نے دیا تھا۔ سوال نمبر 8 ہے، وین ڈاکٹر سر محمد اقبال ڈیلیور دا پریزیڈنٹل ایڈریس ان اینول سیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ۔ علامہ اقبال نے اپنا خطبہ 29 دسمبر 1930 کو الہ آباد کے مقام پر دیا تھا۔ سوال نمبر 9 ہے، وہ سروڈ دا شارٹیسٹ ٹینیور ایز پرائم منسٹر آف پاکستان۔ شارٹیسٹ ٹینیور نور الامین کی تھی ایز پرائم منسٹر آف پاکستان۔ سوال نمبر 10 ہے، دا 18 امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن ریسیوڈ دا اسینٹ آف دا پریزیڈنٹ آن 19 اپریل 2010۔ آپشن بی ٹھیک ہے۔ یہاں پر ویورز سیوکس والی اور پولیٹیکل سائنس والی پورشن میں کچھ سوالات کے جوابات کریکٹ نہیں تھی، تو اس کو بھی ہم ایکسپلین کریں گے۔ سوال نمبر 11 ہے، واٹ ڈز دا ٹرم پولیٹیکل رائٹ انکلوڈ۔ آپشن بی دیکھیے، پولیٹیکل رائٹ انکلوڈ دا رائٹ ٹو ووٹ اینڈ پارٹیسپیٹ ان گورنمنٹ۔ آپشن بی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، ان ایڈیشن ٹو سیوکس which social science explore the economic aspect of society۔ economics۔ آپشن بی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، what does sovereignty refers to in the context of the state۔ آپشن بی دیکھیے، the supreme authority and power to govern۔ کریکٹ آپشن بی ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، what term is used to describe a family consisting of parents and their children۔ A family consisting of parents and their children، اس کا آنسر ہم نے سنگل پیرنٹ فیملی بتایا تھا۔ آپشن ڈی غلط ہے، اس کا کریکٹ آنسر نیوکلیئر فیملی ہے، تو کریکٹ آپشن بی ہے۔ سوال نمبر 15 ہے، وٹ از دا رول آف دا اسٹیٹ ان انٹرنیشنل ریلیشنز۔ آپشن بی دیکھیے، اسٹیبلشنگ ڈپلومیٹک ریلیشنز اینڈ ٹریٹیز ود ادر نیشنز۔ آپشن بی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 16 ہے، وٹ از دا پرائمری گول آف ویلفیئر اسٹیٹ۔ ویلفیئر اسٹیٹ کی پرائمری گول کیا ہے؟ ٹو پروموٹ دا ویل بینگ اینڈ سوشل سیکیورٹی آف اٹس سٹیزن۔ آپشن سی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، ہاؤ ڈز ساورنٹی ریلیٹ ٹو دا ایبلٹی ٹو میک اینڈ انفورس لا۔ سوال نمبر 17 کا کریکٹ آپشن بی ہے، ساورنٹی گرینٹس دا اتھارٹی ٹو میک اینڈ انفورس لاز۔ آپشن بی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، وٹ رول ڈو نان گورنمنٹل آرگنائزیشن NGOs پلے ان شیپنگ دا کنسیپٹ آف گلوبل سٹیزن شپ۔ سوال نمبر 18 کا موضوع آپشن سی ہے، NGOs پروموٹ گلوبل سٹیزن شپ بائی فوسٹرنگ انٹرنیشنل کوآپریشن اینڈ ایڈریسنگ گلوبل ایشوز۔ کریکٹ آپشن سی ہے۔
सवाल नंबर 19 है, हाउ डज द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म इम्पैक्ट द यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, बाकी ऑप्शन गलत है। कल्चरल रिलेटिविज्म प्रोमोट्स यूनिवर्सल राइट्स। सवाल नंबर 20 है, इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की व्हाट इज़ द रोल ऑफ मोनार्क। मोनार्क एक बादशाह को कहा जाता है, एक शाही मुमलिकत को कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी भी है, टू सर्व एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन ज़्यादा मौजू ऑप्शन ऑप्शन सी है, टू परफॉर्म सेरेमोनियल ड्यूटीज़ वाइल रियल पॉलिटिकल पावर इज़ हेल्ड बाय इलेक्टेड ऑफिशल्स। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 21 है, माउंटेन्स वुड ब्रेक बाय द मेरिकल ऑफ विच प्रॉफिट। ब्रेकिंग ऑफ माउंटेन, ये मौजिज़ा था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। सवाल नंबर 22 है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम अमंग द स्लेव्स। ग़ुलामों में सबसे पहली ईमान हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लाई थी। सवाल नंबर 23 है, सुमैया बिनत खबत, ये खबत है, सुमैया बिनत खबत इस्लाम की पहली शहीद खातून थी। ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 24 है, बेत रिजवान वाज टेकन फ्राम मुस्लिम बाय प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फॉर टेकिंग रिवेंज ऑफ। बेत रिजवान ये लिया गया था हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बदला लेने। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भेजा गया था कुफार की जानिब मुज़ाकिरात के लिए, और ये अफवाह फैली थी कि उसको शहीद किया गया है। तो उसी मौका पर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बदला लेने के लिए एक बैत लिया गया था, जिसे बैत रिज़वान कहा जाता है। सवाल नंबर 25 है, विच बैटल वाज पार्ट आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। मक्का 8 हिजरी को फतह हुई थी और 8 हिजरी में ग़ज़वे हुनैन लड़ी गई थी। इसके बाद ग़ज़वे तबूक 9 हिजरी को लड़ी गई। तो फतह मक्का के बाद ग़ज़वे हुनैन भी 8 हिजरी को लड़ी गई। सवाल नंबर 26 है, हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा डॉटर ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डाइड ऑन द डे ऑफ विच बैटल। हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वफ़ात पा गई थी बदर के मौका पर। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। अगला सवाल है, इन विच हिजरी ईयर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डाइड। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 13 हिजरी को वफ़ात पा गई थी। सवाल नंबर 28 है, इन विच हिजरी ईयर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज मार्टर्ड। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 40 हिजरी को शहीद की गई थी और कातिल का नाम अब्दुर्रहमान बिन मलजम था। सवाल नंबर 29 है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पेड फॉर लैंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्क। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी के लिए ज़मीन खरीदी थी। सवाल नंबर 30 है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन्फ्लुएंस बाय विच सूरा ऑफ होली कुरान। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्से में घर आए, लोगों ने उसे कहा कि आपकी बहनोई और आपकी बहन जो है वो मुसलमान हो चुकी है। तो वह जब घर आए तो उसकी बहन सूरह तौहा की तिलावत कर रही थी और यही सूरत सुनकर वह मुसलमान हो गई थी। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 31, यहाँ पर ये 10 सवाल जो है अंग्रेज़ी के है। सिनोनिम ऑफ प्रेस्टीन। प्रेस्टीन असली या पाक को कहा जाता है, तो पाक का सिनोनिम फेवर बनेगा। सवाल नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन ए है, डिस्फंक्शन, बाकी गलत है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप दोस्त किसी भी किस्म की जॉब टेस्ट के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप दोस्त यूट्यूब पर इस तरह सर्च कीजिए, GK बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। इसके अलावा दोस्तों हमारी चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सवाल नंबर 33 है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज। यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है, ओवर एग द फूडिंग। ओवर एग द फूडिंग का मतलब क्या है। ओवर एग द फूडिंग का मतलब है एड अननेसेसरी डिटेल टू मेक समथिंग सीम बेटर और वर्स। ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 34 है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज। रपल समबॉडीज फेदर। रपल के माने ख़राब करने के है, किसी की पर ख़राब करना। तो इस मुहावरे का मतलब है किसी को परेशान करना। एनॉय समबॉडी। ऑप्शन सी ठीक है।
सवाल नंबर 35 है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दैट विच कैन बी ड्रंक। दैट विच कैन बी ड्रंक, इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पोर्टेबल बनेगा। पोर्टेबल के मानी पीने के काबिल के है। सवाल नंबर 36 है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन अ ग्रुप ऑफ हाउसेज जनरली स्मॉलर देन अ विलेज। छोटे से गाँव को हेमलेट कहा जाता है, तो यह ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 37 है द वेपेरर सेड टू मी। वेपेरर मुसाफिर को कहा जाता है। द वेपेरर सेड टू मी डू यू नो द वे टू द ABC विलेज। इनडायरेक्ट स्पीच इसका क्या बनेगा? ऑप्शन ए देखिए, द वेपेरर आस्क मी इफ आई नो द वे टू द ABC विलेज। ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 38 है द स्पेक्टेटर अपॉल्ड द यंग एथलीट सेइंग दैट ही हैड ब्रोकन ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड्स। डायरेक्ट स्पीच इसका क्या बनेगा? ऑप्शन डी देखिए, द स्पेक्टेटर सेड टू द यंग एथलीट ब्राव यू हैव ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिस्टोरिकल सोसाइटी बिल्ड द म्यूजियम। चेंज द वॉइस। द हिस्टोरिकल सोसाइटी built the museum. The museum was built by the historical society. ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 40 है एवरी डिजास्टर अफेक्टेड विक्टिम हैज़ बीन कंपनसेटेड बाय द गवर्नमेंट। चेंज द वॉइस। ऑप्शन ए देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ कंपनसेटेड एवरी डिजास्टर अफेक्टेड विक्टिम। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। आगे की 10 सवालात उर्दू की है और इसके अलावा 10 सवालात संधी ज़ुबान की है, तो मैं उर्दू और सिंधी दोनों MCQs को हल करूँगा। सवाल नंबर 41 है अदब किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? अदब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। सवाल नंबर 42 है इसमें मारिफा की कितनी अक़साम है? इसमें मारिफा की 4 अक़साम है। सवाल नंबर 43 है वो इसम जो किसी आम जगह या शख्स के लिए बोला जाए वो इसमें नकिरा, और वो इसम जो कि किसी मारूफ शख्स के लिए बोला जाए उसे मारिफा कहा जाता है। अगला सवाल है दास्तानों की जगह किसने ली है? दास्तानों की जगह नावल ने ली है। ऑप्शन डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कसीदी की किस हिस्से ने गज़ल की बुनियाद रखी? कसीदी की हिस्से नशेब ने गज़ल की बुनियाद रखी है, तो ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 46 है उर्दू का पहला अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। ऑप्शन डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गालिब किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था? तो गालिब की तहरीरों से पता चलता है कि वह ऐबक यानी तुर्क ख़ानदान से था। कुछ दोस्तों का कहना है कि गालिब कश्मीरी ख़ानदान से था, लेकिन ज़्यादा मौजू ऑप्शन मेरे अंदाज़े के मुताबिक गालिब तुर्क ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। सवाल नंबर 48 है मदजर इस्लाम किस शायर की तख्लीक है? मदजर इस्लाम अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 49 है पाकिस्तान का कौमी तराना किस हैयत में है? 3 सतरें है। पाकिस्तान के कौमी तराने में 3 सतरें है जो कि मुहम्मस हैयत में लिखी गई है। और सवाल नंबर 50 है कलाम में ऐसा लफ्ज़ लाना जिसके 2 माने हो। कलाम में ऐसा लफ्ज़ लाना जिसके 2 माने हो एहाम कहलाता है। ऑप्शन सी ठीक है। हमारे पास आगे के 10 MCQ संधी ज़बान से रिलेटेड है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मैं बताऊँगा। आप दोस्त वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पर करेक्ट आंसर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आप दोस्तों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।